Good morning, student. This is the second class of class 8th rational number. In this class, we will go through some solved problem, discuss some solved problem, that how question has been solved on the basis of rational number. Now, first of all, what is the standard form of a rational number? A rational number p by q is said to be in a standard form if denominator q is positive and p and q have divisor other than 1. स्टैंडर्ड फॉर्म किसी रेशनल नंबर का वो होता है कि p अपॉन q डेट इज कोई रेशनल नंबर है तो उसका जो कॉमन डिवाइज़र हो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो 1 होना चाहिए. मीन्स आफ्टर डैट उसके बाद वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं हो पाता है. जैसे एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. फॉर 30 upon minus 72, we have shifted the minus sign of denominator in numerator. Now we will find the HCF of 30 and 72. On finding the HCF of 30 and 72, we got HCF as 6. Now we will divide both the numerator and denominator by 6. Minus 30 divided by 6, 72 divided by 6. So minus 30 divided by 6, that will give you minus 5. 72 divided by 6, that will give you 12. Now second question, 95 upon 105. Again we will find the HCF of 95 and 105. After finding the HCF of 95 and 105, we got 5. Now divide 95 105 by 5. 95 divided by 5, 105 divided by 5. So 95 when divided by 5, that will give you 19, and 105 when divided by 5 will give you 21. Now third, minus 65 upon 104. Minus 65. We will find the HCF of 65 and 104. HCF of 65 and 104 will be 13. So 65 divided by 13, 104 divided by 13, that will give you minus 5 upon 8. Now fourth, minus 54 upon minus 81. Minus minus get cancelled. On finding the HCF of 54 and 81, we get 27. So 54 divided by 27, 81 divided by 27. So 54 divided by 27 will give you 2, 81 divided by 27 will give you 3. Now again I am explaining in Hindi. जैसे 30 अपॉन माइनस 72 है तो माइनस को हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, फिर 30 और 72 को मैंने HCF फाइंड आउट किया तो उसका HCF 6 आया. 6 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया तो हमारा रिजल्ट आया माइनस 5 अपॉन 12. सेकेंड में हमने देखा कि हमने 95 और 105 का HCF फाइंड आउट किया तो 5 आया. तो 5 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया और हमारा रिजल्ट आया 19 अपॉन 21. थर्ड में हमने देखा कि 65 और 104 का HCF आया 30. तो 65 को हमने 13 से डिवाइड किया, 104 को हमने 13 से डिवाइड किया, रिजल्ट हमारा आया माइनस 5 अपॉन 8. माइनस 54 अपॉन माइनस 81, हमने इसके HCF को फाइंड आउट किया, रिजल्ट आया 27. 27 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया, हमारा रिजल्ट आया 2 अपॉन 3. नाउ एग्जाम्पल 2, that is write down the rational number whose numerator is minus 3 and denominator is 4.
तो न्यूमरेटर इज -3, डिनोमिनेटर इज 4, तो रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, डैट विल बी -3/4। हमने इस क्वेश्चन में देखा कि न्यूमरेटर हमारा -3 है, डिनोमिनेटर 4 है और हमको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो वो हो गया -3/4। एग्जाम्पल थर्ड इज एक्सप्रेस -2/3 एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 4। मीन्स rational number is given, we have to change it in a rational number whose numerator is 4. So -2/3, when we will multiply -2 with -2 we will get numerator 4. So we will multiply -2 in both numerator and the denominator. So -2 into -2, 3 into -2, the result become 4/-6. In second question, that is denominator 9, तो -2/3, तो we have to change denominator 9, तो we have to multiply 3/3, जो 3 into 3 -2 into 3, that will give you result -6/9. एग्जाम्पल 3 में हमने देखा कि -2/3 को ऐसे रेशनल नंबर में चेंज करना है जिसमें न्यूमरेटर हमारा 4 हो। तो हमने क्या किया, -2 न्यूमरेटर की वैल्यू को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -2 अगर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए तो हमको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2 इंटू -2 4 हुआ, 3 इंटू -2 -6 हो गया। सेकेंड में हमने देखा कि डिनोमिनेटर 9 है, तो हमको डिनोमिनेटर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 3 -2 into 3, that is -6/9. 4. Write 3 rational number equivalent to the following rational number, 4/3 और second -6/7. तो in equivalent rational number we have to multiply the same number in numerator and denominator and proceed. For example, 4/3 is a rational number. Now we multiply the same number in numerator and the same number in the denominator. So 4 into 2, 3 into 2. 4 into 2, that has given us 8, 3 into 2, 6. Now again multiply by 3, 4 into 3, 3 into 3. 4 3s are 12, 3 3s are 9. Now 4/3, multiply by 4, 4 into 4, 16, 3 4 जा 12. Hence 3 rational number equivalent to 4/3 are 8/6, 12/9 and 16/12. Second, -6/7. So we will multiply the same procedure, 2, 3, 4, -6 into 2, 7 into 2, -12/14, -6 into 3, 7 into 3, that is -18/21. -6 into 4, 7 into 4, -24/28. हमने देखा कि हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है गिवन रेशनल नंबर का। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में हम क्या करते हैं, गिवन रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4/3 है, तो उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, हमारा रिजल्ट आया। सेम उसी तरह से -6/7 में हमने मल्टीप्लाई किया 2, 3, 4 और हमारा रिजल्ट आया। Find the absolute value of the following rational number. We have to find the absolute value. So in absolute value we change it in the, means positive is positive, negative become positive. This is the meaning of absolute value. If positive become positive and negative become positive, means 5/12. So positive value will be positive, the absolute value will be 5/12. Third, 3/-5. The absolute value will be 3/5. Third, 3/-5. In this manner we can understand. -8/7. So -8/7 positive value, that will become 8/7. -4/-3 cancel out, 4/3. एब्सोल्यूट वैल्यू में ये होता है कि पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव होती है
और निगेटिव वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। तो 5/12 एब्सोल्यूट वैल्यू विल भी होगा 5/12 माइनस 8/7, एब्सोल्यूट वैल्यू 8/7 होगा, और 3/-5 एब्सोल्यूट वैल्यू 3/5 होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि किसी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली एक हमने देखा है कि एक हॉरिजेंटल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, उस हॉरिजेंटल लाइन में जो मोस्ट मिडिल पार्ट इज 0 एंड इन द राइट ऑफ 0 हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड और लेफ्ट में हम निगेटिव नंबर लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो जनरल इंटीजर है तो वो तो रिप्रेजेंट हो गया, लेकिन अगर रेशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, जैसे 3/4 एक नंबर है और उसको हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो पहले हम ये देखेंगे कि 3/4 जो नंबर है वो किस दो नेचुरल नंबर या किस दो इंटीजर के बीच में आ रहा है। तो हमने क्या किया, 3 को डिवाइड किया 4 से, तो हमारा रिजल्ट आया 0.75। तो ये जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में है। तो कभी भी ये फ्रैक्शन, ये रेशनल नंबर जो होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब देखिए, अब ये हमको पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, तो हम फ्रैक्शन क्या है, रेशनल नंबर क्या है, 3/4। तो हम 0 और 1 के बीच में 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, और न्यूमरेटर क्या है 3 काउंट करेंगे 1 2 3। तो डैट विल रिप्रेजेंट द प्लेस ऑफ ए रेशनल नंबर। जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा कि रिप्रेजेंट 4/5 ऑन द नंबर लाइन। तो वी हैव ड्रोन ए नंबर लाइन -4/5. Since number is negative, so we have to take all the point in left hand side. We have plotted 0 and plotted -1. See here, in denominator it is 5, so we will divide 0 and -1 into 5 equal part. Now we have divided 0 and -1 into 5 equal part and come from 0, that is 4, 1 2 3 4, and it has been represented A as -4/5. -4/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, एक पॉइंट पे 0 लिया और एक प्लेस पे हमने -1 लिया, और 0 और -1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और काउंट किया, जहाँ 4 की पोजीशन आई वो पॉइंट हो गया हमारा -4/5। रिप्रेजेंट 3/8, 1/8 and 5/8 on the number line. We have represented 0. Now we have taken a point, that is 1, and we have divided 0 and 1 into 8 equal part. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, and 0 and -1, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8, -1. 3/8. A, we have counted 1 2 3, 3/8. Now -1/8, we have counted B, -1/8, 5/8. C, 1 2 3 4 5. Now in the second case, we will find the sum of a rational number. कि how we find sum of a rational number. Since the denominator is same in all these rational number, so we will, the LCM of denominator will be the same 11, add the numerator, we will get the answer. For example, 6 minus 15, that result will be -9/11. In second question, 6 upon -7 plus 8/7. So minus will be placed in numerator, LCM of 7
and 7 is 7. 7 minus 6 plus 8, that will be 2 upon 7. Third, minus 4 upon 9 plus minus 6 upon 9. 9 minus 4 minus 6, that will be minus 10 upon 9. इन हिंदी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी दो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को हम ऐड करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। जैसे 11 हमारा डिनोमिनेटर है तो 11 हमने डिनोमिनेटर लिया, न्यूमरेटर को हमने ऐड कर दिया 6 और माइनस 15 माइनस 9 अपॉन 11। फिर 7 है, 7 को हमने एलसीएम लिया, फिर माइनस 6 प्लस 8 को हमने ऐड किया, हमारा रिजल्ट आ गया 2 अपॉन 7। थर्ड में माइनस 4 अपॉन 9 प्लस माइनस 6 अपॉन 9, 9 हमने एलसीएम लिया और न्यूमरेटर को ऐड किए, हमारा आंसर आ गया। अब हाउ टू ऐड ए रेशनल नंबर विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। अगर दो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तब हम रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर आर नेगेटिव, मेक इट पॉजिटिव। फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। हमको क्या करना होगा कि पहले एलसीएम निकालना होगा डिनोमिनेटर का। एक्सप्रेस ईच नंबर विद द एलसीएम एज कॉमन डिनोमिनेटर। हमको दोनों गिवन रेशनल नंबर को कॉमन डिनोमिनेटर में चेंज कर लेना होगा। एंड नाउ अब हमारा डिनोमिनेटर कॉमन आ गया तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे और हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फाइंड द सम 6 अपॉन 13 एंड माइनस 4 अपॉन 39। हमने क्या देखा कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 13 एंड 39 इज 39। 13 और 39 का एलसीएम हमारा 39 आया। तो हमको 6 अपॉन 13 जो रेशनल नंबर है उसको 39 में चेंज करना है। तो 13 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 39 आ जाएगा। तो 13 इंटू 3, 6 इंटू 3, तो 18 अपॉन 39 हमारा रिजल्ट आया। फिर सेकेंड उसी का जो रेशनल नंबर है माइनस 4 अपॉन 39, तो उसमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर 39 गिवन है। तो फिर 6 अपॉन 13 के जगह पे हमारा जो रेशनल नंबर आया वो 18 अपॉन 39 आया और माइनस 4 अपॉन 39 जो रेशनल नंबर है वो सेम होगा। और दोनों रेशनल नंबर को हमने देखा कि डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो हमने अभी तुरंत पढ़ा था कि सेम डिनोमिनेटर वाले रेशनल नंबर को बस न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। तो 39 हमारा डिनोमिनेटर आया, तो न्यूमरेटर को 18 माइनस 4 दैट इज 14 अपॉन 39 हमारा आंसर आ गया। सेकंड है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 9 एंड 12। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 9 एंड 12 इज 36। तो माइनस 16 अपॉन 9 है, तो 36 में डिनोमिनेटर को चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, 9 से डिवाइड करो 36 को, 4 आएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 16 इंटू 4, 9 इंटू 4, तो माइनस 16 इंटू 4 जो आया वो कितना आया, माइनस 64 अपॉन 36, माइनस 7 अपॉन 12 जो आया वो कितना आया, माइनस 7 इंटू 3, 12 इंटू 3, तो माइनस 7 इंटू 3 कितना हो गया, माइनस 21, और 12 इंटू 3 कितना हो गया, 36। अब हम दोनों को ऐड करते हैं, तो माइनस 64 अपॉन 36 प्लस माइनस 21 अपॉन 36 को हमने ऐड किया, तो माइनस 64 माइनस 21 दोनों की रिजल्ट आई माइनस 85 अपॉन 36। फिर थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा कि 4/3 और 5 अपॉन माइनस 7 एक रेशनल नंबर है, दोनों को ऐड करना है। तो 4/3 और 5/-7 -7 को हम ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। 3 और 7 का जो एलसीएम आया वो आया हमारा 21। तो फिर हम डिनोमिनेटर को 21 के फॉर्म में
चेंज करेंगे 3 इंटू 7, 4 इंटू 7, 28/21, 5/-7, -5/7, -5 इंटू 3, 7 इंटू 3, -15 इंटू अपॉन 21, 4/3, 28/21, -15/21, 28/-15, 13/21। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम कैसे समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर कोई दो रेशनल नंबर है उसको ऐड करने से हमको रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे a/b और c/d कोई दो रेशनल नंबर है और दोनों को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो होगा हमारा रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे कंसीडर द रेशनल नंबर 1/3 एंड 4/9। तो 1/3 और 4/9 को हमने अभी सीखा कि दो डिफरेंट डिनोमिनेटर के रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, और फिर हमने देखा कि हमारा रिजल्ट जो आया वो 7/9 आया, जो कि एक रेशनल नंबर है। सेकेंड में हमने देखा कि दो रेशनल नंबर है 3/4 और -5/8, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा 3/4 और -5/8। हमने डिनोमिनेटर 4 और 8 का एलसीएम निकाला, वो 8 आया, फिर दोनों को हमने चेंज किया, फिर हमारा एक रिजल्ट जो आया वो 1/8 आया, जो कि एक रेशनल नंबर है। कंसीडर द रेशनल नंबर -5/12 एंड -3/4, -5/12 -3/4। 12 और 4 का एलसीएम हमने निकाला तो वो आया कितना, 12। अब दोनों को हमने एक फॉर्म में चेंज कर लिया, जो फाइनल रिजल्ट हमारा आया वो एक रेशनल नंबर हुआ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर में, जैसे a/b प्लस c/d करें या c/d प्लस a/b करें, हमारा रिजल्ट सेम आएगा। जैसे हमने देखा कि दो रेशनल नंबर 3/4 और 5/6, 3/4 को पहले रखा, 5/6 को बाद में रखा और दोनों को ऐड किया तो हमारा रिजल्ट आया 19/12। उसी तरह से 5/6 को हमने पहले रखा और 3/4 को बाद में रखा तो हमारा रिजल्ट जो आया वो 19/12 आया। तो हमने क्या देखा कि LHS और RHS की वैल्यू सेम है। दूसरे में हमने देखा क्या कि 5/6 और -4/9 है, तो 5/6 को हमने पहले रखा, -4/9 को बाद में रखा और दोनों को ऐड किया तो हमारा रिजल्ट आया 7/18, और -4/9 और 5/6 को हमने रखा और दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा रिजल्ट आया 7/18। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर तीन रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा सेम होगा। जैसे a/b, c/d और e/f अगर तीन रेशनल नंबर है और a/b और c/d को एक साथ रखें और ऐड करें और e/f को उसके रिजल्ट में ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा, या a/b को अलग रखें, c/d और e/f को एक साथ रख के ऐड करें तो रिजल्ट हमारा सेम आएगा। जैसे हमने देखा तीन रेशनल नंबर हैं -3/4, 5/6 और 2/9। तीनों को हमने पहले क्या किया, -3/4, 5/6 को एक साथ रखा, फिर ऐड किया तो हमारा रिजल्ट आया 11/36। उसी तरह से मैंने क्या किया कि -3/4 को अलग कर दिया, 5/6 और 2/9 को एक साथ ऐड कर दिया तो उसका रिजल्ट आया 19/18, और फिर उसको -3/4 के साथ ऐड किया तो उसका भी रिजल्ट आया 11/36। जैसे देखिए कैसे हम चेक करते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है कि नहीं। पहले के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए और पहले के डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर रिजल्ट सेम आता है तो इक्विवेलेंट है, नहीं तो नहीं है। जैसे -5 × 7 -35 हो गया, 8 × -3 -24 आया, नहीं है इक्वल, ठीक है, तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। और कैसे हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर आया वो ग्रेटर होगा।
फिर उसी तरह से सेकेंड में हमने देखा कि पहले के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से, फिर पहले के डिनोमिनेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और जो ग्रेटर आया वो हमारा ग्रेटर हो गया।